وعلیکم السلام. اور بھائی کیا حال چال؟ جی الحمدللہ. بتلائیں کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے صادق. صادق. یہ بتلائیے کس جی ٹاپک پر مطلب گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے یہ پوچھا تھا اقبال بھائی سے، ہمارے بیچ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب ہمارے آخری نبی نے اپنا جانشین غدیر خم میں مقرر کر دیا، اعلان کر دیا حضرت علی کو، تو ان کی وفات ہوتے ہی چینج کیسے ہو گئے؟ میرے سمجھ میں آج سے آج تک یہ نہیں آ رہا. کیا چینج ہو گئے؟ خلیفہ. خلیفہ کون سے خلیفہ چینج ہو گئے؟ بھائی حضرت علی کو اپنا جانشین ہمارے آخری نبی نے بنایا تھا نا، غدیر خم میں باقاعدہ اعلان کیا ہے. غدیر خم میں؟ ہاں. یہ کون سی غدیر کی آپ بات کر رہی ہے؟ جو عید غدیر یہ مناتے ہیں شیعہ لوگ؟ ہاں ہاں ہاں. تو کون سے خلیفہ مانتے ہیں آپ؟ خلفائے ایک راشدین میں منٹ، سے مانتے میرے ہیں نا؟ دماغ میں وہی ایک چیز گھوم رہا ہے کہ جب سب صحیح بخاری میں، ترمذی میں، سب میں لکھا ہوا ہے کیا کہ لکھا رسول ہے؟ اللہ نے اپنا جانشین حضرت علی کو بنایا غدیر خم میں جب آخری حج کر کے واپس ہو رہے تھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو یعنی وفات ہوتے ہی تو خلیفہ کیسے چینج ہو گیا؟ جانشین چینج ہو گیا. اس کا مطلب آپ جو کہنا چاہتے ہیں، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کیوں نہیں ہوئے، ہے نا؟ ہاں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ان کو اپنی زندگی ذرا میں، یہ بتلائیے کہ وہ کون سی تو انہیں حدیث ہے کو. رک جائیے ایک منٹ. یہ بتلائیے کہ وہ کون سی حدیث ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ خلافت جو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک چلے گی خلافت، اور اس خلافت میں 30 سال چلے گی، تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کب فرمایا کہ اس میں سب سے پہلا خلیفہ جو ہوگا منتخب لوگ کریں گے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کریں گے؟ ہے کیا ایسی حدیث کوئی جس میں حضور نے کہا ہو؟ نہیں مجھے نہیں افسوس اس نہیں، بات سے ہو رہا میرا ہے کہ کہنے آپ کا بریلوی مطلب ہے ہیں. کہ آپ بریلوی ہیں ہاں؟ میں بریلوی یا سنی یا شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو لکھا ہوا ہے میں اس کی بات ارے کر رہا ہوں بھائی، میں کہاں پڑھ فرقے میں لیا نہیں ہے؟ جا رہا ہوں. کہاں پڑھ لیا ہے؟ کون سی حدیث میں پڑھ لیا ہے؟ ذرا سینڈ کرنا ہے مجھے وہ حدیث کہ حضور نے فرمایا کہ پہلا خلیفہ ایک جو ہوگا، منٹ ایک منٹ. جو پہلا خلیفہ ہوگا وہ حضرت علی ہوں نہیں گے. نہیں نہیں، پھر ایک منٹ بھائی، ایک منٹ صبر کریے. ایک منٹ. پہلے آپ مجھے یہ بتلا دیجیے، آپ عالم ہیں مفتی ہیں؟ نہیں نہیں، میں عالم مفتی نہیں ہوں میں، لیکن ہر چیز جو چیز مجھے نہیں معلوم رہتی ہے میں اس کے بارے میں معلومات کرنا پسند کرتا ہوں. آپ معلومات مجھے لگ رہا ہے کر نہیں رہے، آپ بحث کر رہے ہیں اس پر. تو معلومات کرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے اس طرح سے کہ پوچھنے کا انداز سے پتہ چلتا ہے کہ شخص پوچھ رہا ہے کہ بحث کر رہا ہے. آپ بحث کا موضوع لے کر کے آئیں. یہ دیکھیے، پوچھنے کا موضوع اگر لے کے آئے ہوتے پڑھیے. نہیں میں ویڈیو بھیجا ہوں، دیکھیے سنو. ویڈیو نہیں، ویڈیو دلیل پر نہیں چلتی ہے. دلیل پر جو ہوتی ہے وہ کتابیں چلتی ہیں، حدیثیں چلتی ہیں. آپ کسی بھی بدبخت سیاہ خارجی کی رافضی کی جو ہے اگر حوالہ ہمیں پیش کریں گے تو ہمارے لیے تھوڑی نہ حجت ہے کسی وہابی وہ کسی سیاہ خارجی کی رافضی کی. نہیں، یہ صحیح بخاری میں، یہ میں اگر آپ کو صفحہ نمبر سب کچھ بتا دوں تو مانو گے؟ ارے کون سی حدیث ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس میں کیا ہے. حضرت علی کو نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے خلیفہ، پہلا خلیفہ مطلب قرار دیا ہے. نہیں، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی من کنتم مولا فہذا علی مولا. ارے وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. جس کا علی مولا ہے. ارے وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جس کے نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم مولا ہیں، اس کے حضرت علی بھی مولا ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبیوں کے بھی مولا ہیں حضرت علی؟ نبیوں کے بھی مولا ہیں مولا علی. میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ مولا ہیں. نبی ہے نا؟ ہاں نبی ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد کیا ہے کہ یعنی جس
उसके उसके अली मौला है। हाँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात होते ही खलीफा कैसे चेंज हो गया? अरे मैं इस खलीफा पर मैं तुमसे अभी बाद में बात करूंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हजरत अली नबियों के भी मौला हैं? हाँ। अच्छा, पहले बात तो आपको इल्म सीखना चाहिए। मैं इसलिए आपको कहता हूँ, मेरी बात सुने पहले। आप पूछने आए कि बहस का मौजू लेकर के, अगर बहस करनी है तो फिर आप 2 मिनट आप बोले, 2 मिनट मैं बोल ले रहा हूँ। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हज़रत नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि मैं जिसका मौला हज़रत अली उसके मौला, तो आप मौला से मुराद क्या लेते हैं यहाँ पर? मौला से मुराद के कई मायने आते हैं अरबी वर्ड में, आप उठाकर अगर देखेंगे तो वजीर के भी एक आते हैं। इधर सुने पहले मेरी बात, एक वजीर के भी आते हैं, एक मददगार के भी आते हैं। अरे बेवकूफ़ इंसान, मैं तुम्हें यही कहता हूँ कि थोड़ा सा इल्म सीख लिए होते तो अकल आती। तुम कह रहे हो कि नबियों की भी माज़अल्लाह एक गैर नबी नबियों का मौला हो सकता है। नहीं, एक मिनट, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों हदीस में? तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, वरना गुमराहियत के दलदल में आप फंस जाएंगे। यहाँ पर मौला के मायने 2 आते हैं, एक आता है कि मददगार के, एक आता है वजीर के। तो नबियों के लिए जो है वजीर के है, उनके वजीर बनेंगे वो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। और हमारे लिए मौला उसी तरह से जिस तरह से नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम हमारे लिए तमाम उम्मत के लिए। और बाकी नबियों की बात है, उनसे बड़े मर्तबे वाले जो हैं उनके लिए वजीर का लफ्ज आता है। यहाँ पर मौला के कई मायने आते हैं, जिस तरह से सैयद के माने 2 मायने आते हैं, एक सैयद के माने सरदार होता है, एक सैयद के माने रास्ता होता है। तो यहाँ पर मायने लेना पड़ेंगे आपको, वरना तो फिर आप कल को ये भी कह सकते हैं कि मौला अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी मौला कहते हैं, हजरत अली को भी मौला कहते हैं, तो शिर्क हो गया। नहीं, मैं शिर्क में नहीं जाना चाहता ना, मैं तो वही मालूमात कर रहा हूं ना। वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको अरबी का वर्ड समझना पड़ेगा कि एक नाम के कई मायने आते हैं अरबी में, अगर देखा जाए। ठीक है, चलो समझ लिया ना मैं। ठीक है, मैं आपके कहने का मतलब समझ गया, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हम जो नबी को मान रहे हैं, यानी हमारे नबी ने क्या कहा? अच्छा ये बतलाइए। अरे सुने, पहले मैंने आपको 2 मरतबा मैंने आपको इसके बारे में 2 मरतबा समझा दिया, फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है कि मौला के मायने हम वही लेते हैं जैसे कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला मानते हैं, मौला अली मुश्किल कुसा को भी वही मौला मानते हैं, मददगार के। लेकिन नबियों की अगर बात आएगी तो नबियों के मौला थोड़ी ना होंगे हजरत अली, या गैर नबी नबी का मौला कैसे बन सकता है? आपको यहाँ पर 2 चीजें समझनी पड़ेंगी कि मौला के माने गैर नबी, एक वजीर आता है, वजीर के माने आते हैं खिदमत करने वाला। तो नबियों के खिदमत गुजार हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को कह सकते हैं, क्योंकि वो नबी हैं। नबी का मकाम व मर्तबा जितना बड़ा है, कोई गैर नबी का मकाम नहीं पहुंच, गैर नबी का सारी उम्मत एक तरफ हो जाए, एक नबी के मकाम तक गैर नबी नहीं पहुंच सकते, कोई भी हो। नबियों का मकाम जो है वो बुलंद है, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे खलीफा की बात करें कि ये खलीफा कैसे चेंज हो गया, अब इस पर आए जरा। हाँ बतलाएं, तो क्या कहना चाहते हैं? तो फिर हजरत अली को उनकी वफात के बाद तो रहना चाहिए था ना, तो उनकी वफात होते ही चेंज कैसे हुए खलीफा लोग? मतलब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बाद जो खिलाफत चली है ना, उसके बाद चेंज कैसे हो गए? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद पहले खलीफा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद जो खिलाफत होगी वो 30 साल तक चलेगी। ठीक है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की 2 साल या 6 महीने या 5 महीने इस तरह से कुछ चली। हजरत उमर फारूक आजम की 10 साल तकरीबन चली। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीबन 12.5 साल चली। ठीक है, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की तकरीबन 4.5 साल चली, 4 साल चली। उसमें से 6 महीना जो बाकी थे हजरत हसन मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत मतलब चलाई। तो ये 5 खुलफाए राशिदीन का इसमें नाम आता है। और उसके बाद हुजूर ने फरमाया था कि फिर उसके बाद बादशाहियत का दौर आएगा। ठीक है, ये खुलफाए राशिदीन जो 4 हैं, 30 साल जिनकी बसारत हुजूर ने फरमाई थी वो पूरे हो गए 30 साल। अब उसके बाद जो आएंगे वो बादशाहियत आएगी, हुजूर ने फरमा दिया बहुत पहले ही जी। तो आप अगर आपको इस बात पर एतराज है कि भाई जो है
हुजूर के बाद जो है हज़रत अली को जो है होना चाहिए खलीफा, तो हुजूर ने कहीं पर यह तो फरमाया नहीं कि मेरे बाद हज़रत अली को बैठा दें या अबू बकर सिद्दीक को बैठा दें। ये तो उम्मत ने फैसला किया है ना, ये तो उम्मत के ऊपर छोड़ा गया है कि जिसको मुंतखब कर लें। नहीं तो जो मुंतखब किया था, जो खुम के मैदान में जो ऐलान किया, उसकी वजह, उसकी फिर क्या वजह है? आपने एक हदीस और सुनी है, आपने एक हदीस और सुनी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद, अंबिया के बाद रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा मकाम मर्तबा अगर किसी का है तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का है। और ख़ुद मौला अली मुश्किल कुसा इरशाद फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है, बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अबू बकर बिन सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसलिए उनको कहा जाता है। एक मिनट भाई, एक मिनट मेरी भी बात सुन लो। मैं भी जो, क्योंकि आजकल नेट पे हर चीज मौजूद है, अच्छी चीज भी मौजूद है, बुरी चीज भी मौजूद है। आप अगर नेट के मुकल्लिद है तो दलदल में आपको जाकर के छोड़ेगी। हमारे उलमा कसरत के साथ मना फरमाते हैं कि अगर इल्म दीन भी सीखना पड़े तो सीना बसीना उलमा इकराम की बारगाह से सीखें। ऑनलाइन आज की डेट में पढ़ाइयाँ होती हैं, आप किसी उलमा से जुड़ जाएं और उनसे पढ़ाई करें, तहकीक करें हर चीज़ के बारे में। आप अगर नेट के गूगल के मुकल्लिद आजकल बहुत चल रहे हैं, गूगल के मुकल्लिद नेट के, ये गुमराहियत के दलदल में फंस जाते हैं, जहाँ इनको ले जाता है गूगल। मेरा कहने का मतलब सिर्फ मेरे दिमाग में ये नहीं बैठ रहा है जी, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान क्यों किया था ये चीज की? किसका ऐलान किया था? गदीर खुम में किस चीज का ऐलान किया? यही कि यानी जिसका मैं मौला हूं, उसके हाली मौला है। बेवकूफ आदमी हो यार तुम, मैंने इसकी पूरी वजाहत करके रख दी, उसके बाद फिर तुम दोबारा वही चीज वही सवालात कर रहे हो। मैंने आपको बतला दिया कि मौला के मायने यहाँ पर दो आते हैं, एक वजीर के आते हैं, तीन बल्कि आते हैं, एक मुझे याद नहीं है, तीन आते हैं बल्कि। बता दीजिए, एक मिनट सबर करिए। तो इसका मतलब है जो हम नबी, यानी जो हम अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ रहे हैं, उन्होंने जब तक वो थे बाहयात, जब तक तो उन्हीं की सब बात मानी जाती थी ना, सबका और माना जाता था ना। किनकी? नहीं, हजरत मोहम्मद। यार आप इतने बड़े अहमक इंसान हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैंने आपको 2 मरतबा समझा दिया है। ये तो बड़े बड़े उलमाए किराम, मुझे नहीं लग रहा है कि आप अहले सुन्नत व जमात से हैं। मुझे यकीन हो रहा है कि आप जो हैं राफजियत की तरफ माइल हो रहे हैं, क्योंकि राफजियत जो होते हैं इस तरह की हालत बड़ी बातें। क्या हक बात कर रहे हैं आप? जो हक की बात करेगा ना तो वो राफजियत और अहले शिया। राफजियत नहीं है, तुम्हारी गुमराहियत है। तुम एक गैर नबी को नबी से अफजल बतला रहे हो, तो नबी का मकाम जो मर्तबा है वो क्या गैर नबी का मकाम मर्तबा हो सकता है? मिर्जा को ले जाओ। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक, सुनो, जब हक की बात करो तो आदमी लोग राफजी बोलता है, उसको शिया बोल देता है, यही बोल के उसको चुप करा देता है। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अली तेरी वजह से 2 गिरोह तबाह बर्बाद हो जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। एक वो जो तुझसे इतनी मोहब्बत करेगा कि नबियों से अफजल तुझे कर देगा। हत्ता के इतने 72 फिरके हैं राफजियत में, तकरीबन 72 फिरके हैं जो एक मौला अली को कहते हैं कि हजरत अली ही खुदा है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक वो तबका है जो नबियों से अफजल बतलाता है, एक वो तबका है जो तमाम सहाबा इकराम से अफजल बतलाता है, तो वो भी जहन्नम में चले जाएंगे। एक जमात ऐसी आएगी जो कि तुझसे इतनी नफरत, इतनी बोग़्ज़ अदावत रखेगी कि तुझे हत्ता के काफिर तक कह देगी। वो खारजी होंगे, वो वहाबी हैं, ठीक है। और एक दरमियानी होंगे जो जैसा कि हुजूर ने फरमाया, जितनी मोहब्बत हुजूर ने बतलाई हदीस के मुताबिक न बढ़ाएंगे और न घटाएंगे, न गुलू करेंगे। वो खैर वाली जमात होगी, वो जन्नती जमात होगी। अब तुम गुमराहियत के दलदल में फंस रहे हो, इस तरह की बेढंगी बातें कर रहे हो कि मौला अली मुश्किल कुसा जो है, मौला का लफ्ज़ तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा। अब तुम कह रहे हो कि न मैं आलिम हूँ न मैं मुफ्ती हूँ। अब गूगल के मुकल्लिद तो जैसे गूगल में देखते हो शिया और राफजियों की वेबसाइट निकल करके आती है तुम्हारे सामने, तो वैसे ही तुम तस्लीम कर लेते हो, मानते हो। और फिर तुम्हें सिया राफजी कह दिया जाए तो हाँ, अब जो अहले बैत की मोहब्बत करता है तो वो हमें अहले बैत से मोहब्बत के, अरे इधर सुनो, अहले बैत से मोहब्बत के दावेदार, मोहब्बत से दावेदार, मतलब मोहब्बत के दावेदार सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है जो हकीकत में वफादार है। जब हमारे नबी ने कह दिया कि अली का जिक्र करना इबादत, अली को देखना इबादत, हर चीज में इबादत, ये है हदीस में कि नहीं है? अरे अहमक इंसान, ये तो हदीस है। हम आप कम इनकार कर रहे हैं? कौन इनकार कर रहा है इसका? हम खुद मौला अली मुश्किल कुसा हमारे मौला हैं। हजरत अली को देखना इबादत, अली का नाम लेना इबादत, अली का दीदार करना इबादत। मौला हम सब के हैं, लेकिन यहाँ पर अंबिया के मौला नहीं हो सकते। मौला के मुराद वहाँ पर खादिम, वो वजीर के लिए जाएंगे, वजीर हैं अंबिया के। क्या अंबिया इकराम के भी मौला हैं?
वजीर कहीं नहीं लिखा हुआ है। अरे वजीर गधे कहीं लिखा हुआ बेवकूफ नहीं है। आदमी, यहाँ पर अरबी वर्ड के 3 मायने निकलते हैं, यहाँ पर एक नाम के बात करो, हजार गधे मायने बेवकूफ निकलते ना हैं। करो। 1000 के कई मायने निकलते हैं। आप जिहालत समझ से में भरे आया? पहाड़ तमीज मुझे वाले के समझ बात नहीं आ कर, रहे हैं। मादरचोद, सुअर की औलाद। ये देखो सामाइन मोहतरम, ये इनकी औकात मेरे को बात करने का है। है ये राफजी की ये औकात तेरी औकात है, है। सुअर की औलाद। तू मेरे को गधा बोल रहा है, गाली दे, पागल बोल रहा है। गाली दे, गाली तुम्हारी दे, ये औकात है, गाली भोसड़ी दे। वाले, तुम क्या है? गाली दे इसी तरह से। क़यामत तक साले तुम जलील हो गए। हजरत अली ने अबे इसलिए साले फरमाया तू था, जाहिल है, जाहिल। हजरत अली करम अल्लाह इसलिए करीम फरमाया का है, गालियां इसीलिए देने तेरे वाले भी जैसे यही के लिए। थे। हम अली वाले, हम पलट कर गाली नहीं देते। हमारे अली नहीं। ने हमको अखलाक सिखाए हैं। हजरत इमाम नहीं, वही हसन से, बता। अहले बैत पाक से नहीं, हमने तू ये जो सीखा गधा है। बोल रहा और है। यजीदी जो है, अबे यजीदियां भोसड़ी गाली वाले तो बकते गधा थे। किसको- नमक इंसान बेवकूफ भोसड़ी गदर वाले, लजी बेदाल का औकात बुगत में रहो। कुगत घमड़ कहीं गांड के फट जाएगी। हैं? मेरा सवाल जा कभी कहाँ- पूछ लेना कहीं। तेरी औकात पता चल बेटा, गई। औकात में रहे। अच्छा, हुजूर की एक हदीस हाँ, और सुना मालूम दे हो रहा गया हूँ औकात। कि हुजूर ने फरमाया था कि मुनाफिक की अलामतों में वही से एक तो ना, अलामत और औकात भी है कि मालूम हो बात गया। बात साले पर तू मेरे गालियां को गधा बकेगा। कुत्ता बोल रहा है। बात एक बात पर मुसलमान गालियां को एक बकेगा। मुसलमान गधा कुत्ता तेरी बोल रहा है, औकात पागल सामने बोल आ रहा गई, है। तेरी औकात सामने आ अबे गई ना सुन भोसड़ी के, करके। तेरी औकात। ये देख गालियां बक रहा है मुनाफिक, गालियां बक रहा है मुनाफिक, हदीस पूरी कर रहा है मुनाफिक। साला एक मुसलमान हो के अरे एक मुसलमान गधे, को बोल रहा है तू। जाहिल, पहले तू जा मुसलमान अपना है ही इलाज नहीं। करा भोसड़ी के, अपने दिमाग अरे का। तू मुसलमान है ही नहीं अपने गधे। दिमाग का इलाज करा भोसड़ी के। अरे तू मुसलमान एक है ही भाई नहीं को एक गधे। भाई बोल, सुवरियत का कुत्ता फारम, गधा है। सुवरियत का फारम। मुसलमान भाई है, हमारे नबी ने अरे कहा है। सुवरियत का फारम तुझ जैसा हरामुद दहर, हरामुन नास, हरामुन नफ्स, वलद जिना, जिना से पैदा अबे हुआ साले हराम की औलाद सुअर हमारा भाई हो ही नहीं मादरचोद, सकता है। माविया की औलाद। वही तो जाके कह रहा हूँ, भोसड़ी तू के माविया राफजी की पैरवी कुत्ते, करो। हरामुद दहर, माविया की हरामुन पैरवी- नस्ल, वलद जिना, जिना से हुआ पैदा, यजीद की रूहानी औलाद, हराम की औलाद, कूफी गद्दार, हरामुद दहर, हरामुन नफ्स, हराम की औलाद, औकात क्यों छुपा रहा था मुनाफिक कहीं का। मुझे पहले ही शक था कि तू, मुझे पहले ही शक था कि तू राफजी कुत्तों में से एक कुत्ता है, जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। अरब की सरजमीन पर गूं लैट्रिन टट्टी पोथड़े गूं के चाट रहा है हराम की औलाद। कूफी धोखेबाजो, तुमने इमाम हुसैन को खत दे दे करके खबीस की औलादो, तुम्हारी नस्लों ने बुलवाया, फिर धोखा दिया कूफे में। यजीद से इतना खौफ करते थे, खबीस की औलादो। हाँ, इमाम हुसैन के कातिलो, हराम की औलादो, आज दम भर रहे हो इमाम हुसैन से मोहब्बत मुझे का। मालूम हो गया बेटा, तुम माविया इमाम की औलाद हुसैन के हो, कातिलो, हराम की औलादो, तुम्हारी नस्लें का, तुम्हारी नस्लें जो थी, कूफी जो तुम्हारी नस्लें थी, उन्होंने धोखा दिया इमाम हुसैन को, और इमाम हुसैन से जंग के लिए आमादा हो गए। खत बुलवा करके, खत लिख करके इमाम हुसैन को ब्लैकमेल किया। खबीसो तुम लोगों ने। हाँ, इमाम हुसैन के घराने को शहीद किया। खबीसो तुम लोग, आज दम भर रहे हो मोहब्बत का। झूठे मक्कार दज्जाल कहीं के हैं। जवाब नहीं दे पाया। यजीद की तरफ से गालियां आई थी, यजीद की तरफ से गालियां आई थी, और तेरी औकात सामने आ गई। यजीद पलीद की तरफ से गालियां आई थी। यजीद ने भी गालियां बकी थी इमाम हुसैन को, हजरत अली को गालियां बकी थी यजीद पलीद ने, इमाम ज़ैनुल-आबिदीन को गालियां दी थी, हजरत अब्बास को गालियां दी थी, हजरत अब्बास को भी गालियां दी थी, हजरत अली अकबर को गालियां दी थी यजीदियों ने। और इमाम हुसैन ने यही नसीहत की कि उनको पलट करके गाली मत देना, ये हमारे अखलाक नहीं है। और हमारे अखलाक ये नहीं कि हम तुम जैसे जहन्नमियों को गालियां दें। तुम जहन्नमियों का, मुनाफिकों का यही काम है कि तुम हमें गाली दे रहे हो और हम तुम्हें नसीहत कर रहे हैं। खबीस जहन्नमी कुत्ते, वलद ज़िना की पैदावार, मोहल्ले वालों की मेहनत का नतीजा, तेरी माँ ने की खता तू हो गया था। कितने लोगों का मेहनत है, कितने लोगों की मेहनत का नतीजा है बे, कितने लोगों की मेहनत का नतीजा है। कानपुर रहता है ना, कानपुर रहता है ना, कानपुर रहता है ना बे, हरामुन दहर, ओ हरामुन नस्ल, ओ हरामुन नस्ल, ओ हरामुन नस्ल, वलद ज़िना, ज़िना की पैदावार, इब्ने ज़ियाद की औलाद, ओ इब्ने ज़ियाद की औलाद, सिमर की औलाद, ओ सिमर जिलजोसन की औलाद।